So, shall we just say a quick word of prayer? आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। Our Heavenly Father, we thank you for your goodness to us, to allow us to come together again and sit at your feet and hear your word. We are all so much in need, Lord. We want प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये स्वीकृति दी कि एक बार फिर हम एकत्रित होकर आपके चरणों में बैठ सकें प्रभु, और आपके वचनों को सुन सकें जिनकी हमें बहुत आवश्यकता है। to hear your voice, to lift us up and encourage us, and to follow you, be faithful to you. प्रभु, हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं जिससे हम उन्नति पाएं, प्रोत्साहन पा सकें और प्रभु पूरी निष्ठा के साथ वफादारी से प्रभु आपका अनुसरण कर सकें। So speak to each one of us, Lord, and we pray that all the internet and all this will go smoothly. We ask in Jesus' precious name. Amen. प्रभु, हम सब से आप बात कीजिए। हम एक अच्छे इंटरनेट के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि ये सब कुछ सुचारू रूप से हो सके। हम ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। So we've been meditating on the parable of the sower. हम बीज बोने वाले के दृष्टांत के ऊपर मनन कर रहे थे। You know, each time I read that parable, I'm so blessed and uplifted. I cannot tell you how much by reading a little bit at a time. जब भी मैं इस दृष्टांत को पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा आत्मा में उत्थान पाती हूँ, प्रोत्साहित होती हूँ। It's like when we feed our children, we don't give them big mouthfuls. We give a little bit at a time and we ask them to chew it, and then they get the nourishment. ये बिल्कुल इस प्रकार है कि जब हम अपने बच्चों के मुंह में निवाला डालते हैं तो उनके मुंह को भरते नहीं, बल्कि एक समय पे छोटा छोटा निवाला डालते हैं और उनसे कहते हैं अच्छी तरीके से चबाओ ताकि उनको पोषण मिल सके। It's just like that when we read God's word. ये बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। And I was thinking about the parable of the sower, which been studying for some months now. अब मैं सोच रही थी बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में, जो कुछ हम महीनों से पढ़ रहे हैं। Matthew 13, verses 3 to 9, and Jesus gives the explanation in verses 18 to 23. मत्ती अध्याय 13 उसका 3 से 9 पद तक और 18 से 23 में, जहाँ पे यीशु मसीह ने इसको अपने चेलों को समझाया। So that even though it was a simple parable about a sower who went forth to sow, the disciples couldn't understand. सरल सा दृष्टांत है जिसमें एक बीज बोने वाला खेत में बीज बोने गया, परंतु इस दृष्टांत को उसके चेले समझ ना पाए। And so they asked him. So Jesus said, it's not given to all people to understand. जब उन्होंने इसका मतलब पूछा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबको इन भेदों की समझ नहीं दी गई है। If you read, remember what Jesus said in Matthew 11, अगर आपको याद हो कि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11 अध्याय में क्या कहा था, where he said, Matthew 11 verse 25, he said, the wise people cannot understand. Revelation is given to those who are like children. मत्ती अध्याय 11 का 25 में प्रभु ने कहा कि ज्ञानी और समझदार इन बातों को नहीं समझ सकते, पर यह प्रकाशन बालकों पर प्रकट किया गया है। If we come with as clever people and we think I can understand everything that's given in the Bible, we'll miss. But those who are simple and humble like children, innocent like children, and don't have any questions and doubts, and when we come like that, the Lord gives us revelation. यदि हम बहुत ही बुद्धिजीवी होकर बाइबल को पढ़ने शुरू करें और ये समझे कि हम सब कुछ समझ जाएंगे, तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। परंतु एक बच्चे के समान यदि हम एक नम्र और दीन और मासूम होकर आए तो हम इन बातों को समझ पाएंगे। Thinking of a small incident which happened many years ago in Bangalore. A young brother from Europe came to visit our CFC church. एक छोटी सी घटना बहुत सालों पहले बीती। एक भाई था जो यूरोप से CFC बैंगलोर में आए
and he was on transit, so he spent some weeks with us and he had fellowship. I think that time some of my children were at home. सफ़र में थे तो कुछ समय कुछ हफ्ते वो हमारे साथ रहे संगति के लिए और उस समय मेरे बच्चे घर पर थे। So he was talking to us and he said he is one of triplets. His mom had 3 babies at the same time and all of them looked alike and she couldn't make out the difference between them when they were tiny. And she और उन्होंने कहा कि वो ट्रिपलेट हैं, उनकी माँ के 3 बच्चे हुए, उनकी माँ ट्रिपल गर्भावस्था में थी। needed help to bring them up. Then as they grew up, though they looked alike, she had to put bracelets on their hands to know which is which and dress them up in different colors. वो तीनों बच्चे एक समान दिखते थे और माँ को समझ नहीं आता था वो तीनों कौन कौन हैं। जितने वो बड़े होते गए तो माँ ने उन तीनों के हाथों में कंगन पहनाया ताकि वो देख सके कि तीनों अलग हैं और उनको अलग अलग रंगों के परिधानों में वो तैयार करती थी। So she wouldn't forget. And sometimes she would ask, are you so and so? Are you so and so? To get the response if that was the right child. और वो इसलिए करती थी ताकि वो भूल ना जाए कौन बच्चा कौन है और इस प्रकार वो तीनों से पूछती थी क्या आप ये हो, क्या आप ये हो, और तीनों बच्चों की प्रतिक्रिया आती थी। So the children had different stages in their development. बच्चों के विकास के अलग अलग चरण हैं। Some 1 or 2 started speaking their language. I think some European language. एक दो ने अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिया था, शायद यूरोपियन भाषा। So quicker than the others. One of them was starting to stand up and walk. और एक बच्चे ने तो खड़ा होकर चलना भी शुरू कर दिया था। So development was different levels. तो उनके विकास के अलग अलग चरण थे। But she noticed that all 3 of them, they'd be talking to each other in some syllables. उन्होंने एक चीज पे गौर किया कि वो तीनों बच्चे आपस में सिलेबल में बातचीत करते थे। She couldn't understand. She thought it is just baby gibberish. उनको समझ नहीं आती थी, उनको लगता था ये बच्चों की अपनी एक भाषा है, एक अस्पष्ट भाषा में जिसमें तीनों बात करते हैं। But they do those syllables to each other and sometimes all 3 would start laughing. पर ये तीनों बच्चे एक दूसरे से सिलेबल में बात करते थे और कभी-कभी वो तीनों एक साथ हंसना भी शुरू कर देते थे। Then she thought these children are able to understand what they're saying to each other. So she'd ask one of them, what did your brother just say? The one who could speak. And he would say, he needs potty change, his diaper to be changed. और उनको समझ आई कि तीनों बच्चे आपस में सिलेबल में बात करते हैं, तो वो उस बच्चे से जो बोल सकता था उससे पूछती थी कि आपके भाई को क्या चाहिए, और वो कहता था पॉटी चेंज या उसका डायपर वो बदलने की जरूरत है, Or like he's thirsty, he wants milk. या उसको प्यास लगी है, उसको दूध चाहिए। Somebody else. But these 3 were communicating with each other in that language. It seemed like gibberish to her, but it was a language to these children. तीनों बच्चे आपस में एक भाषा में बात कर रहे थे जो कि माँ को एक अस्पष्ट भाषा लग रही थी, परंतु ये भाषा इन तीनों की भाषा थी। And that brother who came visited us was one of those triplets. And he said when they went to school, they grew up and went to school, they talked to each other in that language. और जो भाई हमारे घर में आया था वो इन तीनों में से एक बच्चा था, और उसने बताया जब वो बड़े हुए और वो विद्यालय जाते थे तो भी वो इस भाषा में तीनों आपस में बातचीत करते थे। And they would understand each other. Private language, it had no unheard of language, but they understood each other and they would share their secrets with each other. और ये इन तीनों की गोपनीय भाषा थी जो औरों को समझ नहीं आती थी, पर ये इसी भाषा में बात करते थे और अपने सारे जो राज थे वो भी एक दूसरे पे प्रकट करते थे। So I was just thinking, those children, they developed a language of their own, which they और मैं सोचती हूँ कि इन तीनों बच्चों ने अपने ही प्रकार की एक भाषा को विकसित किया जो तीनों समझ सकते थे आपस में। could understand each other and no one else could understand. I thought, Jesus speaks to children like that. He can understand the children's language. और मैंने सोचा प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार बच्चों से बात करते हैं और बच्चों की इस भाषा को समझ पाते हैं। We have to be humble
and contrite and broken and be like little children to understand that language which Jesus is speaking to us. हमें ज़रूरत है कि हम दीन हो, नम्र हो और टूटे हुए हों ताकि प्रभु यीशु मसीह की इस भाषा को हम भी समझ पाएं। They spoke to me. Many years later, I think all three of them are married now, but they still remember that baby language they used to talk, and they can understand and share those things. वो बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी हो चुकी है, परंतु आज भी वो इन बातों को याद करते हैं कि किस भाषा में वो बात करते थे और किस भाषा में एक दूसरे को समझते थे। That often comes to my mind when Jesus says, told his disciples, to you it is given the ability to understand spiritual things, not to. और इससे मेरे मन में आता है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है पर उनको नहीं। ये बात प्रभु ने अपने चेलों से कही थी। All people. For some people, they are blind, they can't see. Your eyes are opened, you can see. Some people, though their ears are open, but they can't hear or understand. But you, God has given you the ability to understand. उन्होंने कहा कि कुछ लोग हैं वो देखते हुए नहीं देखते पर तुम देख सकते हो और सुनते हुए वो लोग नहीं सुनते पर तुम सुन सकते हो और तुम समझ भी सकते हो। So that should be our prayer always. That's my prayer, Lord. Let me be like a little child. और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मैं भी एक छोटे बालक के समान बन सकूं। Always able to understand whatever you want to tell me. क्या समझ सकूं प्रभु कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। Not have complicated questions and theories in my mind. Why this and so theologian said like this or this. But like a child, in simple faith, come to you, and God will speak to me. That's the meaning of revelation. मेरे दिमाग में ऐसे जटिल प्रश्न ना हो और ना ही एक सिद्धांत हो कि ये ऐसा क्यों है और वो वैसा क्यों है, धर्मशास्त्रों ने ये बातें ऐसी कही हैं, ये बातें वैसी कही हैं। नहीं, बच्चे के समान एक सच्चे विश्वास के साथ प्रभु मैं आपके पास आऊं और प्रभु जो आप कहना चाहते हैं प्रभु उस बात को मैं सुनूं। And in the past studies, I don't want to talk much about it, but we know the sower who sowed the field is the Lord Jesus. पीछे जैसे हम पढ़ चुके हैं और वो बीज बोने वाला जो बीज बोता है वो प्रभु यीशु मसीह है। And now his disciples, the elders, and God's word speaks to us. और आज उनके चेले, पुरनिये और प्रभु का वचन हमसे बात करता है। Who sows words in our heart, and we moms also are sowers. We sow God's word, the word of the kingdom of God into the hearts of our children. और हम माएँ भी वो बीज बोने वाले हैं जो अपने बच्चों के हृदयों के अंदर प्रभु के राज्य का बीज बोते हैं। In one sense, we are also sowers. And then I thought the field, we think it's a big field. एक रीति से हम माएँ भी बीज बोने वाले हैं और फिर मैंने सोचा कि वो जो खेत है वो तो बहुत ही बड़ा खेत है। Where the sower just goes on throwing the seed. जहाँ पे वो बीज बोने वाला हर जगह पर उस भूमि पे बीज फेंकता जा रहा है। But when you think about it deeply, it's not a field. The field is the world, but the soil is us. अगर हम ध्यान से गहराई से इसके बारे में सोचें तो ये खेत तो है पर ये खेत नहीं है बल्कि ये हम हैं, हम। Our heart, that little space in our heart. ये हमारा हृदय है, वो छोटी सी जगह हमारे हृदय में, ये वो है जहाँ पे बीज बोया जाता है। That's the soil. It's not a big field, and if you ये एक बड़ा खेत नहीं है बल्कि ये हमारा हृदय है जो कि मिट्टी है जिस पर ये बीज बोया जाएगा। read in Jeremiah 17 verse 9, there's a verse says, the heart is deceitful above everything else. यिर्मयाह अध्याय 17 का 9 वचन कहता है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। And turn to that verse, Jeremiah. And then I thought, when we think of good soil and bad soil, and in the past few weeks we were thinking of rocky and soil with thorns and
जब हम सोच रहे थे तो एक अच्छी भूमि के बारे में, एक खराब भूमि के बारे में, एक पत्थरों से भरी भूमि के बारे में और एक ऐसी भूमि जहाँ पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ उगी हुई हैं, ऐसी भूमि। Thistles and the soil by the wayside. Everything, even what we consider as a good soil, all of us, our hearts are deceitful. और हम जब सोचते हैं कि ये जो भूमि अच्छी होगी, ये मिट्टी अच्छी होगी, परंतु ऐसा नहीं है। हम सब के जो हृदय हैं, बहुत ज़्यादा धोखेबाज हृदय हैं। Nobody can understand मर्म कोई नहीं समझ सकता। what the state of our heart is. Only the Lord knows. हमारे हृदय की क्या स्थिति है, नहीं कोई समझ सकता, केवल परमेश्वर ही समझ सकता है। Even if we think everything is okay and we are fine, Jesus, the Lord says, all our righteousness is as filthy rags. अगर हमें लगता है हम सब ठीक हैं, सब कुछ हमारे साथ ठीक है, फिर भी प्रभु का वचन कहता है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान हैं। As filthy rags. We cannot think that it's worth showing to anyone. It's so dirty. Our heart's condition is like that. हम ये ना सोचें कि हम ये किसी को दिखा सकते हैं, इसमें कुछ अच्छाई है ना, ये बहुत प्रदूषित है, बहुत ज्यादा। Until the Lord cleanses us. And the Lord keeps on cleansing us as much as we allow Him to cleanse. और प्रभु ही है जो हमारे हृदयों को शुद्ध कर सकता है, और यदि हम प्रभु को अनुमति दें तो उसे शुद्ध करेंगे। Sometimes we say, Lord, please don't cleanse this room of mine in my heart. Please just do this outward testimony which other people can see. कभी कभी हम कहते हैं, प्रभु मेरे हृदय के इस कमरे के अंदर कोई सफाई ना कर प्रभु, बल्कि बाहर से जो लोग देख सकें उस बाहरी रूप को प्रभु आप शुद्ध कर दो, ताकि एक अच्छी गवाही दूसरों के ऊपर मेरे बाहरी जीवन से प्रकट हो सके। Everybody should think I am a good person. That's enough. सब ये सोचे कि मैं तो बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। But the Lord says, no, there are some nooks and corners in your heart. I want to cleanse that. परंतु प्रभु कहते हैं नहीं, आपके हृदय के कमरे में कुछ नोके, कुछ सिरे हैं, कुछ कोने हैं जहाँ पे बहुत गंदगी है, इनको भी साफ करने की जरूरत है। Make that as good heart, good soil where my seed can be sown. ताकि उस जगह को शुद्ध करके एक अच्छी भूमि, एक अच्छी मिट्टी बन सके जहाँ पे मेरा बीज बोया जा सके। And we know what is that seed. The seed is the kingdom of God. और हम जानते हैं वो बीज क्या है, वो बीज है प्रभु के राज्य का बीज। The truths, the seed of the kingdom of God, which God wants to break in our sow in our hearts. उस सत्य प्रभु का राज्य वो बीज है जो प्रभु हमारे हृदय में बोना चाहते हैं। And we know it. What is that kingdom of God? Jesus said, my kingdom is not of this world. और हम जानते हैं वो स्वर्ग का राज्य क्या है। यीशु मसीह ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का So नहीं। it's not this earthly kingdom. तो ये वो दुनियावी राज्य नहीं है, इस दुनिया का राज्य नहीं है। He told Pilate, my kingdom is not of this world. And he उन्होंने पिलातुस से कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। told his disciples that this kingdom of God is come. The kingdom of God is with you. उन्होंने अपने चेलों से कहा कि परमेश्वर का राज्य आ चुका है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। And we know in Romans, that verse where it says that the kingdom of God, Romans 14, verse 17, it says, the kingdom of God is righteousness, peace, joy in the Holy Spirit. I'm just going through what we've done before. और रोमियो अध्याय 14 के 17 में प्रभु ने कहा है, परमेश्वर का राज्य धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मैं वो बातें बता रही हूँ और इन सब से हम गुजर चुके हैं। Righteousness, not just outward righteousness. धार्मिकता सिर्फ बाहर के प्रदर्शन करने वाली धार्मिकता नहीं है। The righteousness which comes from the Lord. वो धार्मिकता जो प्रभु के द्वारा हमारे अंदर आती है। Not our own good works or anything. When the Lord does a work of the Holy Spirit in our heart, that is the righteousness which He is looking for and which He is sowing in our heart. प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमारे अंदर धार्मिकता आती है, उसके बारे में बात कर रहा है, जो बीज वो हमारे हृदय में बोते हैं। Peace, not peace like to make peace with others and say, hi, how are you? And in our heart we are bitter towards her. Not that. ऐसी शांति नहीं जहाँ पे हम दूसरों से कहते हैं, हाँ आप कैसे हैं, सब कुछ ठीक है,
बाहर से तो शांति है परंतु अंदर से हम हमारे हृदय कड़वाहट से भरे हुए हैं। इस शांति की बात नहीं हो रही। type of peace, but the peace which comes from God, where all our sins are forgiven and we are forgiving others. पर वो शांति जहाँ पे प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है और जो लोगों ने हमारे प्रति कुछ गलत किया है उसके लिए हमने लोगों को क्षमा किया है, उस शांति की बात। That's the divine peace that God can give. वो ईश्वरीय शांति जो परमेश्वर हमको दे सकते हैं। And joy in the Holy Spirit. We can look cheerful and happy, but inside there might be all turmoil and unrest. But the joy with the Lord gives, even if there's sorrow and suffering and all kind of outwardly disastrous things happening, but there's joy in our heart. और जो उस आनंद की बात प्रभु कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से आनंद है। वो आनंद नहीं है जहाँ पे हम बाहर से तो बहुत आनंदित नजर आते हैं परंतु हमारे हृदय में घबराहटें भरी होती है, हम अशांत होते हैं। बल्कि वो शांति जो आनंद प्रभु हमें देता है, चाहे हम किसी भी परेशानी में हो, सतावट में हो, हम चारों ओर से सभी प्रकार की आपदाओं से घिरे हुए हो, बाहरी आपदाएं हो, फिर भी वो शांति हमारे हृदय में बनी रहती है। उस शांति के बारे में The world cannot take away, which the Lord gives in our heart. वो संसार वो शांति नहीं ले सकता जो शांति प्रभु हमारे हृदय में प्रदान करते हैं। And it only comes from the Holy Spirit. और ये केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम में मिलती है। Just repeating what we did. मैं उन्हीं बातों को दोहरा रही हूँ जो बातें हम ऑलरेडी सुन सके हैं। And today we I want to meditate a little bit about the good soil, how Jesus can make our filthy hearts into good soil. और आज मैं थोड़ा मनन करना चाहती हूँ एक अच्छी भूमि के बारे में। प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारी भूमियों को, जो कि बहुत खराब भूमियां हैं, प्रदूषित भूमियां हैं और गंदी भूमियां हैं, उनको शुद्ध कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। Soil which was all filthy, rocky, full of all kind of wrong things, polluted, everything, Jesus can make it into good soil. And that वो खराब मिट्टी जो कि बंजर है, पथरीली है, कठोर है, प्रदूषित है, बुरी है, सब गलत बातों से भरी है, उस मिट्टी को, उस भूमि को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर सकते हैं। that's his work. ये उनका कार्य है। Not that we are lucky to have some good soil in our heart. No. ऐसा नहीं है कि हम बहुत सौभाग्यशाली कि हमारे हृदय में कुछ अच्छी भूमि है, कुछ अच्छी मिट्टी है। नहीं, All of us imperfect, full of deceit, deceitfulness. That's what the Lord calls. Not हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है, हम सबके अंदर धोखा है, हम सब धोखे से भरे हुए लोग हैं। saying that I'm calling anybody deceitful, but the Lord says, all of you, your hearts are deceitful. ऐसा नहीं कि मैं किसी को धोखेबाज कह रही हूँ, पर तो प्रभु का वचन कहता है कि हमारा मन जो धोखा देने वाला है। The Lord wants to make it clean, and then प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे इस धोखेबाज मन को शुद्ध कर सके। we read that when the seed of the kingdom is sown in such cleansed heart, which is filled with the Holy Spirit, where the Holy Spirit has worked, और हम देखते हैं जब प्रभु के राज्य का वो बीज हमारे हृदय में बोया जाता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया है, then it will bear fruit. और तभी ये भूमि जो पवित्र आत्मा ने तैयार की है ये फल लाएगी। You return to John chapter 15. We read those verses, those precious verses. यूहन्ना अध्याय 15 में चले तो हम इन बहुमूल्य वचनों को पढ़ सकते हैं। We've read that before. John 15 verses 1 to 8. हम पहले पढ़ चुके हैं यूहन्ना 15 का 1 से 8 पद तक। He says that as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, so neither can you unless you abide in me. जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। And then he says there, verse 8, my Father is glorified by this, that you bear much fruit. और पद 8 में वो कहते हैं कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। And so you prove to be my disciples. तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। When we bear much fruit, then we prove that we are disciples of Jesus.
यदि हम बहुत सा फल लाएं, तभी हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। That it's not an optional thing. Oh, I'll bear little fruit. I'll be ये कोई वैकल्पिक या स्वैच्छिक बात नहीं है कि कोई बात नहीं, मैं थोड़े से फल को उत्पन्न कर लूंगी, a little kind to so and so whom I hate. A little fruit. कि मैं जिनको मैं बहुत नफरत करती हूँ उनसे मैं थोड़ा सा कोमलता से पेश आऊंगी और थोड़ा सा फल लाऊंगी। नहीं, I'll forgive little bit my person who's harmed me so much. मैं जिसने मुझे बहुत दुख पहुंचाया मैं थोड़ा बहुत उसको माफ कर दूंगी, I'll talk to her. It's not like that. या मैं उससे बात कर लूंगी, कोई बात नहीं है। नहीं, ये इस प्रकार से नहीं होता। The Lord says, I want you to bear much fruit. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत सा फल लाओ। And we read later, such a person can be bearing fruit 100-fold, 60-fold, or 30-fold. और हम आगे पढ़ते हैं कि ऐसा व्यक्ति 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल ला सकता है। Different degrees of fruit. That's it. यहाँ पे अलग अलग मात्राओं में बताया गया है कि वो कितने फल ला सकता है। In Matthew 13, we read in that parable. मत्ती 13 में हम इसको पढ़ सकते हैं। So if I go into details of that, I won't be able to finish. So I'm just saying, we all know it. अगर मैं गहराई में जाऊं तो हम समाप्त नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम सब इस बात को जानते हैं। So we must be in that category of bringing much fruit, 100-fold. हम इस श्रेणी में आए कि हम 100 गुना फल उत्पन्न करने वाले बने। That's up to us. It's not up to the sower. The sower, the Lord has sown in our hearts. We read God's word, and we receive God's word, and it's up to us how much. ये हम पर है, हमने प्रभु के वचन को सुना है, हमने प्रभु के वचन को स्वीकार किया। ये हम पर है, ना कि बीज बोने वाले पर। ये हम पर है कि हम कितना फल उत्पन्न करते हैं, कितना फल लाते हैं। Much fruit we can bring. And we are not to compare, oh, I'm bearing 70 and she's bearing 60. और कभी हम ये तुलना ना करें कि देखो मैं तो 70 गुना ला रही हूँ और ये तो 60 गुना फल ला रही है। We don't compare with anyone. कभी भी दूसरे से इस बात की तुलना ना करें। We say, Lord, please look into my heart. What's the condition of my heart? Am I bearing 100-fold? हम प्रभु से पूछें, प्रभु मेरे हृदय को देखें, क्या मेरी अवस्था ठीक है, क्या मैं फल ला रही हूँ प्रभु, 100-fold fruit which is pleasing to you, क्या मैं 100 गुना फल ला रही हूँ जो आपको खुश कर सके, or am I bringing fruit just to show off to others? या मैं सिर्फ इसलिए फल उत्पन्न करूँ ताकि दूसरों को दिखा सकूं कि मैं क्या कर रही हूँ। What is that fruitfulness? ये फलवंतता क्या है? First of all, we are fruitful by bearing fruit. We are proving that we are His disciples. पहली बात है फलवंतता। जब हम बहुत सा फल लाते हैं तब हम बताते हैं कि हाँ, हम मसीह के चेले हैं। So important. Can't say, Lord, I just can't bear any fruit. ये बहुत अनिवार्य है। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु मैं कुछ भी फल नहीं ला सकती। The Lord says, I want you to prove to the world that you are my disciples by bearing fruit. प्रभु कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम दुनिया को साबित करो फल लाकर कि हाँ तुम मेरे चेले हो। What is that fruit? We know. All of us know. Even if we ask our children, they'll say the fruit of the Spirit. हम चाहते हैं वो फल क्या हैं। अगर हम बच्चों से ही पूछें तो पवित्र आत्मा के फल क्या हैं वो बता सकते हैं। It's not our own goodness and our kind nature and smiling at everyone. ये हमारी अच्छाई है, हमारा कोमल स्वभाव नहीं है, या दूसरों पे मुस्कुराना नहीं, ये सब नहीं है। And we're a nice person. Oh, hi, how are you? या अच्छे व्यक्ति बनकर कि आप कैसे हैं, हाल समाचार पूछकर नहीं। Always having a smiling expression. No, the fruit of the Spirit we know. हमेशा चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखने से भी हम भरे नहीं बन जाते। Galatians 5:23, which we sing and we teach our children. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. गलातियों अध्याय 5 का 23 जो हम गाते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। It's just not just names.
the fruit which the Holy Spirit alone can bring. ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो फल हैं जो केवल पवित्र आत्मा ही हमारे अंदर से ला सकते हैं। For example, love. We think, oh, I love a few people. I can't love this person that much as I love this other person. कि मैं लोगों से प्यार करती हूँ, पर मैं इस व्यक्ति से उतना प्रेम नहीं कर सकती जितना मैं दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती हूँ। It's not that. The Lord says, love even your enemies. ऐसे नहीं चलता। प्रभु ने कहा है, अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। Love your enemies. In the past, you love your worldly people, love their friends, but you love your enemies. Forgive them. संसार के लोग अपने दोस्तों से ही प्रेम रखते हैं, परंतु तुम उनसे भी प्रेम रखो जो तुमसे शत्रुता रखते हैं। How can we love people who hate us, who are mean to us? हम ऐसे लोगों से कैसे प्रेम कर सकते हैं जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमारा फायदा उठाते हैं, जो मतलबी हैं। That's only the Holy Spirit who can give us that kind of. सिर्फ पवित्र आत्मा है जो इस प्रकार का अनुग्रह हमें दे सकते हैं कि हम ये कार्य कर सकें। That's why we need to come to the Lord and say, Lord, please give me that love in my heart. प्रभु के पास आने की जरूरत है, उनसे बोलना है, प्रभु हमें ऐसा दीन नम्र मन दीजिए मेरे खुदावन। Every day, not one day should go without that work of the Holy Spirit. एक दिन मेरे जीवन में ना गुजरे बिना पवित्र आत्मा के उसके कार्य के मेरे जीवन में। The joy, I want to have that joy. मुझे वो आनंद चाहिए प्रभु। Outwardly and in my home, my children may be sick, my husband may not have his job, and things are not going. I might. हो सकता है बाहर के देखा जाए तो मेरे बच्चे बीमार हो और मेरे बच्चे के पास मेरे पति के पास वो नौकरी ना हो। Myself might be sick, but Lord, please give me that joy. हो सकता है मेरी तबीयत ठीक ना हो, परंतु प्रभु कृपा करके मुझे वो आनंद दीजिए। Whatever people are saying to me or about me, please give me the joy in my heart. लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, मेरे पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, प्रभु कुछ भी हो प्रभु, मुझे वो आनंद दीजिए मेरे प्रभु। My heart is that soil. Please put that seed of, plant that seed of joy. Like that we can say about everything. मेरा हृदय वो भूमि है प्रभु यीशु, मिट्टी है खुदावन। पवित्र आत्मा की ओर से प्रभु यीशु ये आनंद का बीज मेरे हृदय में बोइए। Gentleness, how we're so impatient with our children. Any small thing we think like, how many times I've told, and we tell them, I've told you multiple times, don't do that, and they're doing that again. बच्चों के साथ कितने असंयमी हो जाते हैं। कितनी बार हमने बच्चों से डांट के कहते हैं कि ये काम मत करो। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया कि इस कार्य को मत करो, फिर से तुम वही कार्य करते हो। When will you stop it? कब रुकोगे? So the Lord says, be patient, just as I've been patient with you. प्रभु कहता है संयमी बनो, जिस प्रकार मैं तुम्हारे साथ संयमी हूँ, तुम भी संयमी बनो। Forgive them, be gentle. को माफ करो, उनके साथ नम्रता से पेश आओ। If you can't be gentle, who else will be gentle with them? अगर हम अपने बच्चों के साथ कोमल नहीं हो सकते तो कौन उनके साथ कोमल होगा? In this world, they're not going to be receiving gentleness from anyone. इस दुनिया से हमारे बच्चों को कोई कोमलता नहीं मिलने वाली, हमसे ही मिलेगी, घर पर ही मिलेगी। So like that, the Lord brings us to a point of need every day. We ask the Lord, Lord, please sow that seed in my heart. प्रभु हमें जरूरत के ऐसे केंद्र बिंदु पे ले आता है जहाँ पे हम कहते हैं, प्रभु इस बीज को मेरे हृदय में बो दीजिए। Let my soil be, the soil in my heart be ready to receive every seed that you want to sow. तो कि मेरे हृदय की ये भूमि, मेरे हृदय की मिट्टी, आपके हर उस बीज को जो आप बोना चाहते हो उसको लेने के लिए प्रभु यीशु तैयार हो। And that fruit of the Spirit is one aspect of bearing fruit. और पवित्र आत्मा का फल एक पहलू है प्रभु के फलों को प्रकट करने के लिए। The other aspect is not just ourselves, self. I must be better, I must be joyful, I must be gentle. दूसरा पहलू ये है अपना खुद ही मैं अच्छी हो जाऊं, मैं कोमल बन जाऊं, नहीं। We must be a blessing to others. That's the fruit we can bear.
दूसरा पहलू है स्वयं आनंदित रहूं, मैं कोमल रहूं, मैं आशीष बनूं, इस प्रकार औरों के लिए एक आशीष का कारण बन सकूं। We glorify the Lord when we are a blessing to others. जब हम दूसरों के लिए एक आशीष बनते हैं खुदावन के लिए, वो प्रभु को महिमा देने वाली बात होती है। We show forth the love of Christ and the patience of Christ. हम लोगों को प्रभु के प्रेम को दिखाते हैं। We help people, come to them in their time of need. Even हम लोगों की मदद करते हैं, जब उनको जरूरत होती है उस समय हम उनके पास जाते हैं। before they ask us, we are there for them. इससे पहले कि वो हमसे कुछ बोले, उससे पहले ही हम उनके पास पहुंच जाते हैं उनकी मदद सहायता करने के लिए। Even if we can't do anything, at least we can pray for them. यदि हम कुछ ना भी कर सके तो हम एक कार्य तो अवश्य कर सकते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। All the ways in which we can bear fruit. ये अलग अलग तरीके हैं किस प्रकार हम प्रभु के उन फलों को प्रकट कर सकते हैं। I praise and thank God. We can learn so much about the Lord from this, so much about our Christian life. मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, उसकी स्तुति करती हूँ कि हम कितनी बातों को इनसे सीख सकते हैं। So, to have this good soil, I thought of just a few things where we can work. मैं सोच रही थी कि इस प्रकार के अच्छे मिट्टी के लिए हम कुछ काम ऐसे कर सकते हैं। It's not like automatically we have a good soil. ऐसा नहीं कि एकदम से हमारे अंदर एक अच्छी भूमि, एक अच्छी मिट्टी उत्पन्न हो जाएगी। Provided for us. Like sometimes we can, in our gardens, we can go and buy some good soil from wherever you get soil. कभी कभी होता है कि हम अपने बगीचों के लिए एक अच्छी मिट्टी को ला सकते हैं, जहां से भी वो मिट्टी हमें मिल सके। In whatever Home Depot, where you have that soil, you get them in big bags and put it in your flower beds. होम डिपो में अच्छी मिट्टी मिल सकती है और हम उसको भरकर लाते हैं बोरियों में और अपने फुलवारी में उसको उस मिट्टी को हम फैला देते हैं। And vegetable bed, and it's not like that type of soil which we can have. इस प्रकार की मिट्टी की बात नहीं हो रही जिसके बारे में और जिसकी हमको आवश्यकता है अपने जीवनों में, अपने हृदय में, Which we get spiritually. It's the soil which we have to work on. ये वो मिट्टी है जिसके लिए हमें स्वयं मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। We have to allow the Lord to work in our hearts to produce that type of soil. हमें प्रभु को अनुमति देनी होगी कि वो हमारे हृदय में कार्य करें ताकि इस प्रकार की मिट्टी को उत्पन्न किया जा सके। It doesn't come automatically. ये एकाएक नहीं आ जाता। It takes months, years of working to get that good soil. महीने लग जाते हैं, सालों बीत जाते हैं इस प्रकार की एक अच्छी मिट्टी को उत्पन्न होने के लिए। And the good plant can grow and fruitfulness can grow. ताकि एक अच्छा पौधा उग सके और उस पौधे के द्वारा अच्छे फल प्रकट हो सके। Years. Can't say, oh, yesterday I worked on my garden. Today I don't need. सालों लग जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें पिछले कल ही मैंने अपने बगीचे में काम किया और आज सब कुछ फलवंत हो गया। If we let a few days go like that in our garden, we know what will happen. अगर हम कुछ दिन बिना काम किए अपने बगीचों में देखें तो हम जानते हैं कि बगीचों का क्या हाल होगा। All the bugs and the worms would have got into it, and our garden gets filled with weeds and get neglected. और इस प्रकार से फिर सारे दीमक और कीड़े हमारे उन बगीचों में लग जाएंगे और सारे खरपतवार जो हैं उस बगीचों में उग जाएंगे। So we have to work, allow the Lord to produce that good soil. इसलिए जरूरत है कि हम काम करें और प्रभु को भी हम अनुमति दें कि प्रभु हमारे हृदयों में ये कार्य कर सके। I thought of a few things by which we can produce good soil and allow the Lord to produce good soil. मैं कुछ बातों के बारे में सोच रही थी जिससे हम लोग प्रभु को अनुमति दें और प्रभु हमारे हृदयों में इस अच्छे से मिट्टी को उत्पन्न कर सके। First of all, as we already studied in Bible study earlier, जैसे कि हमने पहले बाइबल अध्ययन में पढ़ लिया था, we have to allow the Lord to break up that soil. हमें प्रभु को अनुमति देनी होगी ताकि वो उस मिट्टी को तोड़ सकें।
When we look at our garden outside, is in some places it's almost like clay, almost like cement. यदि हम अपने बगीचों को देखें तो कुछ क्षेत्रों में वो बिल्कुल ऐसे चिकनी मिट्टी की तरह होता है या बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है वो एरिया, Because it's a clay soil. क्योंकि वो एक चिकनी मिट्टी है। It's all hard. And I think some time back, Lara shared this verse. याद है कि कुछ समय पहले लारा ने ये वचन मुझसे साझा किया था, Break up the fallow ground. अपनी पड़ती भूमि को जोतो। It's in Jeremiah 4:3. यिर्मयाह अध्याय 4:3 में लिखा है। You remember that, Lara? You shared that verse and I wrote it down. आपको याद है लारा, आपने ये वचन मुझसे साझा किया था और मैंने इस वचन को लिखा था। Break up the fallow ground of your heart. अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपने हृदय को जोतो। And that's what we need. Lord, please break up the fallow ground in my heart. और वही है हमें जरूरत है, प्रभु मेरे इस हृदय की इस कठोर जमीन को आप जोतो, इस पड़ती भूमि को जोतो। If I let 2 or 3 days go by and I don't take care of my garden and I'm careless in my spiritual life, in my prayer life, in my Bible reading, or in judging myself, then this ground becomes fallow, becomes. यदि मैं अपने खेत को और बगीचे को देखूं और मैं वहां पे बिल्कुल ध्यान ना दूं तो मैं जान सकती हूँ कि वहां पे क्या हाल हो जाएगा। उसी प्रकार लापरवाही में कार्य करने से क्या होगा? यदि मैं अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह रहूं, वचन का ध्यान ना करूं, अपने आप को वचन में होकर ना जांचूं, Heart becomes like concrete. And the Lord says, break it up. तो मेरी जो जमीन है, मेरे जो हृदय की पड़ती भूमि जमीन है, वो भी कठोर और अनुपजाऊ बन जाएगी, बिल्कुल ठोस पत्थर के समान बन सकती है वो जमीन। और प्रभु कहता है इसको तोड़ो। We have to allow the Lord to break it up. इसलिए प्रभु को हमें अनुमति देनी होगी कि प्रभु हमारी इस पड़ती भूमि को जोते, उसको तोड़े, Break it little by little. थोड़ा थोड़ा करके इसको जोते। He doesn't use hard bulldozers or hammers to break it up. प्रभु को बहुत ही ज्यादा एक बुलडोजर की जरूरत नहीं है और या हथौड़ों की जरूरत नहीं है इस भूमि को तोड़ने के लिए या जोतने के लिए। His ways are sometimes very gentle, just with a little fork or something. उनके तरीके बहुत ही कोमल होते हैं, शायद एक कांटे के द्वारा प्रभु इस कार्य को कर लें। He allows dig it up, because he's already done a major work. वो कहते हैं खोदते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा कार्य कर चुका है, Moving the stones and all the heavy things with big bulldozers. But now he just does a gentle work. वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं बुलडोजरों के द्वारा निकालने के लिए, सारे जो भारी काम है प्रभु कर चुका है, परंतु अब एक कोमल काम करना है। Break it up so that soil becomes loose. तोड़ना है ताकि जो मिट्टी है वो ढीली हो सके And ready to allow the water to fall into it and और वो तैयार हो जाए ताकि पानी उस पर गिर सके fruitfulness, and the plants, they stretch out their fruits. और ताकि जो उसके अंदर पौधे हैं वो भी फैल सके और फल उत्पन्न कर सके। So, and breaking it up also remind me of the humbling that we need to take. और तोड़ने का मतलब मैंने एक चीज और भी जाना कि अपने आप को दीन करने की आवश्यकता। We need to allow the Lord in our hearts. हमें प्रभु को अनुमति देनी है कि हम अपने हृदयों में प्रभु को अनुमति दें कि वो हमें दीन नम्र कर सके हृदयों में। Here we read that every day we must ask the Lord, make my soil permeable. हमें हर दिन प्रभु से प्रार्थना करनी कि प्रभु मेरे इस मिट्टी को तोड़िए, प्रभु इसको तोड़िए। In Isaiah 57:13 it says, God looks at us, he searches for such people as those who have a humble and contrite heart. यशाया 66:2 में प्रभु कहता है वो हमें ढूंढता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करता हूँ जो दीन और खेदित मन का हो। He doesn't turn away or be against people
वो मुंह नहीं मोड़ता या वो लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं होता, who have a humble and broken heart. जिनके मन दीन और खेदित हैं, उनके वो खिलाफ खड़ा नहीं होता, उनसे वो मुंह नहीं मोड़ता। Isaiah 66:2, it says, to this person will I look, one who has a broken and contrite heart. It's, mm, Isaiah 66:2. यशायाह 66:2। My hand has made all these things, means the whole earth. But to this one I will look, to him or her who's humble and contrite of spirit and trembles at my word. यहोवा की यह वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, ये सारी पृथ्वी, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। This means I respect God's word. यानी कि मैं प्रभु के वचन का आदर करती हूँ। God's word says this and respect it. I don't प्रभु का वचन ये कहता है और उसका आदर करना है। want to excuse it or give some explanation. It's not meant for this day. It's not meant for me. It's हमें कोई बहाना नहीं करना, हमें कोई सफाई नहीं देनी कि आज के दिन के लिए ये वचन लागू नहीं है या कल के वचन दिन के लिए ये वचन लागू नहीं है और अभी ये वचन लागू नहीं हो सकता। meant for that culture. Lord, every word of yours I want to respect. या ये वचन इस संस्कृति के लिए लागू नहीं है, नहीं, प्रभु का वचन सब चीजों में लागू है। So that's the breaking I was thinking. और ये है वो तोड़ना जिसके बारे में मैं सोच रही थी। So people may speak ill of us, and we allow the Holy Spirit to not get, let us not get offended or लोग शायद हमारे बारे में बहुत बुरा बोलेंगे, पर हम तो प्रभु से मदद मांगने कि हम उन बातों का बुरा ना माने, हमें पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है। hurt by it. That's the breaking process. ये है उसका तोड़ने का तरीका। People can speak rudely to us. Circumstances, pressures may come, challenges in the home with our children, as I mentioned, so many things. शायद लोग बेरुखी से हमसे बात करेंगे, हम एक ऐसे नैतिक दबाव से भरी परिस्थितियों में आ जाएं, हमारे घर, हमारे बच्चों से संबंधित बातें, बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे हम टूट सकते हैं। It's not an instant process of breaking. दम से होने वाला कोई बात नहीं है कि बस अभी टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा। It's a lifelong process where we allow the Holy Spirit to work in our hearts, break us little by little. और ये एक टूटने की तत्काल प्रक्रिया नहीं है, ये आजीवन प्रक्रिया है जहाँ पे हमें प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में धीरे-धीरे तोड़ने के लिए सहमति देनी है। He is not harsh. He is a loving Father. कठोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रेमी पिता है। The Holy Spirit does a gentle work, breaking us little by little. परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर बहुत ही कोमल कार्य करता है, धीरे-धीरे हमें थोड़ा-थोड़ा करके हमें तोड़ते हैं। Digs up like with a fork or even with a gentle garden tool, breaks us up and makes the soil permeable. और एक कांटे के द्वारा या जैसे खेतों में हम उपकरण को इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके वो हमें तोड़ते हैं और हमें तैयार करते हैं। He doesn't use big machines. He uses small things and gentle ways to break us up. बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल प्रभु नहीं करते, छोटे-छोटे तरीकों से और कोमल तरीकों से प्रभु हमको तोड़ते हैं। That's one thing, that breaking process. ये एक बात है, तोड़ने की प्रक्रिया। The second thing I was thinking of is we need water. और दूसरी बात जो मैं सोच रही थी वो है, हमें जल की आवश्यकता है। Every plant needs water. हर एक पौधे को पानी की ज़रूरत है। And we all know, before we can say, what is that water? और हम सब जानते हैं कि वो ये जल क्या है, ये पानी क्या है। Jesus was talking about in John 7:37, he says,
If anyone thirsts, let him come to me, and I'll give him living water. And out of his belly, out of his innermost being, will come living water. और यूहन्ना अध्याय 7 के वचन में प्रभु ने कहा है कि यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। 7 का 37। We have to be thirsty. We have to say, Lord, I'm thirsty. Even though yesterday you gave me that living water, I'm thirsty today. और हमें कहना है, प्रभु मुझे प्यास लगी है, आपने मुझे पिछले कल भी ये जीवन का जल दिया था, परंतु प्रभु आज मैं प्यासी हूँ। Like our children come to us and say, Mom, I want water. Especially in Colorado, you know. जैसे कि हमारे बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं, मम्मी, माँ, हमें पानी की जरूरत है। Need to drink a lot of water. हालांकि कोलोराडो में हमें पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पीना पड़ता है। It's dry, and in mountainous areas we need to drink. ये बहुत ही ज्यादा सूखा इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा पानी को पीने की आवश्यकता है। I thirst, Lord, I thirst for you. मुझे प्यास लगी है, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे आपके लिए प्यास लगी है प्रभु। As the deer pants for the water brooks, my soul thirsts for you. That thirst should be there. जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मेरा प्राण तेरे लिए प्यासा है। इस प्रकार की प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। It's not something that comes automatically, but we have to make ourselves, Lord, so many days have gone. Have I ever come and told you in the past few days that I thirst for you? और हमें कहना है, प्रभु कितने दिन बीत चुके, तो कभी क्या मैं आपके पास आई और आपसे कहा, प्रभु मैं आपके लिए प्यासी हूँ, I thirst for that living water. मुझे उस जीवन के जल के लिए प्यास लगी है प्रभु। We have to actively make ourselves do that. हमें सक्रिय रूप से इस प्रक्रिया को करना है। Like we remind our children, drink water. Like you see the children when they play their games, and the coach says, water, drink water, take water break, or whatever they call that. जैसे कि हम अपने बच्चों को निरंतर स्मरण कराते हैं कि पानी पियो, या जब खेल के मैदान में जो कोच है, प्रशिक्षक है, वो हमारे बच्चों से कहता है, रुकिए रुकिए, अभी पानी पीजिए, मध्यांतर अवधि का समय है, पानी पीजिए। And they go and drink water. अब वो जाकर पानी पीते हैं। Like that, we need that water break often in our lives. और उसी प्रकार हमें भी पानी के लिए ये मध्यांतर अवधि की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने जीवन में। Lord, remind me, I need a water break now. प्रभु मुझे स्मरण कराना प्रभु कि मुझे पानी को पीने के लिए इस मध्यांतर अवधि की जरूरत है। I need to drink of your Holy Spirit so that I can be refreshed. प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से पीने की जरूरत है ताकि मैं फिर से तरोताजा हो सकूं। Never let a single day go with multiple water breaks. Lord, कभी भी एक भी ऐसा दिन जाने ना दीजिए जहाँ पे आपको एकाधिक से ज्यादा मध्यांतर अवधि में पानी की आवश्यकता हो और आपको वो ना मिले। Right now when I'm doing my work, these thoughts are coming, anxious thoughts are coming. I need a water break, Lord. और अभी प्रभु जब मैं इस काम को कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में इतने ज्यादा चिंता करने वाले प्रश्न आ रहे हैं, प्रभु मुझे अभी एक पानी, जीवन का जल पीना है, मुझे एक मध्यांतर चाहिए। I need to drink of you and मुझे आप में से प्रभु वो जल पीना है। be satisfied with your goodness, with your freshness in me. ताकि मैं आपकी भलाई के साथ और आपकी उस खुशी के साथ प्रभु पूरी तरीके से तृप्त हो सकूं। That's the second thing, and not an instant process. ये दूसरी प्रक्रिया है, एकदम से होने वाली कोई चीज नहीं है। In Joel, if you turn to the book of Joel, there is beautiful verses. यदि आप योएल की किताब में Joel, यदि आप योएल की किताब में जाएंगे तो वहां पे बहुत ही ज्यादा सुंदर वचन लिखे गए हैं। योएल is after Ezekiel. Joel chapter 2, verses 23 to 27. एजेकियल की किताब के बाद योएल अध्याय 2 का 23 से लेकर 27 वचन। It says,
about rain. Verse 23, it says, God has given us the early rain and the latter rain. इसमें 23 में लिखा है, प्रभु ने हमें पहली वर्षा दी है और फिर पिछली वर्षा भी दी है। Early rain is in spring. Why do we need that early rain? जो पहली वर्षा होती है वो बसंत की वर्षा होती है, और हमें उस वर्षा की क्यों आवश्यकता है? Because summer time is going to come, but it's going to be so hot. We need the early rain, the spring rain to refresh us. क्योंकि अभी वो गर्मी का समय आने वाला है, ग्रीष्म काल आने वाला है, जहाँ की सब कुछ बहुत ही ज्यादा सूखा होने वाला, मुश्किल होने वाला है। इसी कारण हमें बसंत की वर्षा की जरूरत है ताकि हम तरोताजा हो सके। And the latter rain is in the fall, in autumn, they say in England. और इंग्लैंड में कहा जाता है कि जो पिछली वर्षा है वो शरद की वर्षा है। Autumn rain is so that the harsh winters we can tide by. There's rain there. और ये वर्षा इसलिए ताकि कठोर सर्दियों में हम प्रवाह में चल सकें। The Lord says about the Holy Spirit. He's speaking about the Holy Spirit. यहाँ पे प्रभु पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। Says, I'll give you a spring rain and a autumn rain. वो कहते हैं, मैं आपको बसंत की वर्षा दूंगा और मैं आपको शरद की वर्षा दूंगा। So that summer and winter, harshness of winter and the dryness of summer, you can tide by. ताकि वो कठोर सर्दियों का समय और इतनी सूखी गर्मी के समय में आप चल सकें, प्रवाह कर सकें। I'll give you that rain. And then he says, you'll be satisfied in verse 26. And और 26 में वो कहता है कि आप तृप्त हो जाओगे। then there's a verse which says here, verse 27, I think, where it says that he will restore the years that the locusts have eaten. Can't find that verse now, but he says he will restore. So many times we feel that the locusts have, okay. Many times we feel that the years have gone by and we backslidden. योएल अध्याय 2 के 25 में लिखा है कि जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। कितनी बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत ज्यादा टिड्डियां लग चुकी हैं और हम पीछे अपने आत्मिक जीवन में पछाड़ चुके हैं। And locusts and insects have eaten up the plant. और टिड्डियों ने और कीड़ों ने उस पौधे को खा लिया है। And the Lord gives us this promise, I will restore that. और प्रभु हमें वायदा देता है कि मैं वो तुम सबको भर दूंगा। Those years for you and make you fruitful again. और फिर से मैं तुम्हें फलवंत करूंगा। What a comfort that is. We may think like, I've gone so far away from the Lord. I'm not, the time when I accepted the Lord, I was so fresh. And now the locust, the enemy has eaten up so much of my Christian life and my. कभी हम सोचते हैं कि जब मैं आई तुम प्रभु के निकट की थी, पर अब मैं प्रभु से कितनी दूर हो चुकी हूँ, और जैसे शायद मेरे आत्मिक जीवन में कितना ज्यादा टिड्डियों ने उस जीवन को खा लिया है। Freshness, but the Lord says this promise, I will restore the years that the locusts have eaten. परंतु प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे उन सारे समयों को भर दूंगा। And then another beautiful verse I was thinking of was in Jeremiah 17 verse 7. और एक और बहुत सुंदर वचन है यिर्मयाह 17 का 8 में। It says we will be like a tree planted by the water. कहता है हम उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो। By the river. We'll be fresh like the tree planted by the river, with this the water from that river will always keep the tree fresh. Even in drought time, it will bear fruit. The leaves will be fresh. और जो पानी है उस नदी का, वो हमेशा उस पेड़ को हमेशा हरा भरा रखेगा, और जो भूगर्भ से जो पानी है वो उसकी जड़ों को ताजा रखेगा। That means everywhere around there's
drought, there's dryness. Whole Christian world, there's dryness. आत्मिक जीवन में चाहे कितना भी सूखापन हो, फिर भी As we can see in many places, in many churches, dryness. जैसे हम कई जगहों में देख सकते हैं और कई कलीसियाओं में भी देख सकते हैं कि कितनी वहाँ पे सूखापन है, आत्मा में कितना सूखापन है। The Lord says, you'll be like a tree planted by the river. There'll be always freshness in your life. प्रभु कहते हैं हम उस वृक्ष के समान होंगे जो नदी के किनारे लगा हो और हमेशा हमारे अंदर वो ताजगी बनी रहेगी। If you get that water from that river, यदि हमें उस नदी से उस पानी को हम प्राप्त कर सकें, the river is the Holy Spirit. और वो पानी, नदी का पानी है पवित्र आत्मा। And sometimes the river is underground water. We don't see it. People don't see where are we getting this freshness. और कभी कभी वो जो नदी होती है वो भूगर्भ है, वो जमीन के नीचे भूगर्भ है और हमें समझ नहीं आता कि ये पानी हमें मिल कहाँ से रहा है।